آج کا جو عنوان ہے رمضان کا اختتام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ سورہ فصلت کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر خوب جمے رہے، قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، وہ لوگ جو اللہ کی عبادتوں کے اندر، وہ لوگ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ساری زندگی اللہ پر یقین اور بھروسے کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے کی وحی کے ذریعے آگاہی کر دی، بتا دیا سب کچھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک وہ تمام باتوں کو پہنچا دیا ہے۔ ان احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اور اس کے اوپر جم جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کے مقرب فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، جو کچھ آنے والی مصیبتیں ہیں ان کے اوپر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور جو کچھ پیچھے حالات غمگین گزر چکے ہیں اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور جنت کی وہ خوشخبری دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کیا ہوا ہے۔ ہم تمام کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو ہم سے گزر چکا ہے، کتنے لوگ رمضان سے پہلے ہی انتقال کر گئے، کتنے لوگ رمضان کے اندر انتقال کر چکے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو رمضان کی عبادتوں کا موقع دیا۔ ہم نے رات میں کھڑے ہو کر قیام لیل پڑھا ہے اور دن کے اندر ہم نے روزہ رکھا ہے، اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور غور و فکر کرتے رہے، اور جتنا ہو سکے ہم سے برائیاں ختم ہو جائیں اور نیکیاں کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے۔ 30 دن رمضان کے مہینے کے اندر ہم برائیوں سے بچتے رہے، گناہ کے قریب جانے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو رب مان لے اور استقامت کے ساتھ اس کے اوپر جم جائے، علم کو حاصل کریں اور عمل اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کریں، جس طرح کہ ہم نے وہ نمونہ رمضان کے اندر پیش کیا ہے، جتنا ہو سکے ہم نے اپنے آنکھوں کو گناہ سے بچایا، کانوں کو برائی سننے سے بچایا، زبان کو برا بولنے سے بچایا، اور ہم ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ رات میں ہم نے قیام لیل کیا، دن میں ہم نے روزہ رکھا اور اللہ کے سامنے خوب دعائیں مانگی، ہم نے استغفار کیا۔
मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम इस्तिकामत के साथ सारी जिंदगी जिस तरह हमने अमल किया है ऐसे ही हम सारी जिंदगी के एतबार से अमल करने वाले बन जाए। जैसे हम रमजान के महीने में 5 वक्त नमाज पढ़ने के एतबार से हम फिक्रमंद थे। फजर हमने फौरन पढ़ ली, जोहर का हम इंतजार करते रहे कि फौरन अज़ान हो जाए तो हम फौरन मस्जिद को जाएंगे। असर के लिए हम इंतजार में लगे रहे कि फौरन मैं फर्ज असर की नमाज पढ़ लूं। कितना हम फराइज के एतबार से हमने कोशिशें की और नवाफिल के एतबार से भी हमने खूब अल्लाह के सामने नवाफिल पढ़ी है। सुन्नतों के एतबार से हमने खूब पाबंदी की है। यही इस्तिकामत, चाहे खौफ का माहौल हो, चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे वो मौसम जिन एतबार से सर्दी, गर्मी, बरसात, चाहे जो मौसम आ जाए, हर एतबार से हम अपने अंदर अपनी जिंदगियों में ये इरादा कर ले कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका जिंदगी का हमें बताया है, इबादतों के एतबार से, मामलात के एतबार से, तिजारतों के एतबार से, जिंदगी के हर वक्त को अल्लाह के नबी ने पेश किया है किस तरह तुमको जिंदगी गुजारना है। हम इस्तिकामत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर हम अपनी जिंदगियों को जमा दें, हम अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह की बंदगी के अंदर ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से इस्तिकामत से जम जाए। अगर कोई लालच दे, अगर कोई आपको उम्मीद दिखाए तो हम अपने रास्ते से ना हटे, हम तौहीद के रास्ते पे मजबूती के एतबार से जम जाएं, हम इबादतों के एतबार से मुकम्मल तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादतों का तरीका सिखाया है, बताया है, हम उसके ऊपर अपनी जिंदगी में अमल करने वाले बन जाएं। मोहतरम सामईन इकराम, सुफियान बिन अब्दुल्लाह अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी जामे नसीहत कर दीजिए कि इस नसीहत के बाद मुझे कोई और चीज की जरूरत न पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और इसके ऊपर जम जाओ। अल्लाह पर ईमान लाना वही हमारा माबूद बरहक है, वही हमारा तन्हा खालिक और मालिक है। हम जो इबादतें करते हैं वो अल्लाह ही के लिए करते हैं। जो कुछ हम सदका खैरात करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते। हम अपनी जिंदगियों के अंदर ये यकीन कर लें कि मेरा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई और देने वाला नहीं है। ये पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगी, ये हाथ अल्लाह से मांगने वाले बनेंगे। मैं सारी जिंदगी अल्लाह से मांगता रहूंगा, अल्लाह पर यकीन रखूंगा, अल्लाह पर भरोसा करूंगा, हर मामले के अंदर मैं अल्लाह को पुकारूंगा। हम अल्लाह पर ईमान लाएं और इस्तिकामत के साथ उस पर जम जाएं। जैसे कि हमने रमजान के अंदर खूब दुआएं मांगी, इन ताक रातों के अंदर हमने अल्लाह को राजी किया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमने दुआ और इस्तिग़फ़ार किया कि ऐ अल्लाह तू ही हमारा माबूद बरहक है। हम तुझी से सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह दीन के ऊपर इस्तिकामत से हमें जमा दे। हमने रमजान के मुकम्मल महीने के अंदर तहज्जुद का एहतमाम किया। मोहतरम सामईन इकराम, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में
12 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में उसके लिए घर बनाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली क़ब्ल अज़्ज़ुहर अरबअन व बअदहा रकअतैन व बअद अल-मग़रिब सनतैन व बअद अल-इशा रकअतैन व क़ब्ल अल-फज्र रकअतैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा इस हदीस की राविया है, कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले 2 रकात पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली क़ब्ल अज़्ज़ुहर अरबअन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर से पहले 4 रकात पढ़ते थे और ज़ुहर के बाद 2 रकात नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद व बअद अल-मग़रिब सनतैन, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात अदा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व बअद अल-इशा रकअतैन, और ईशा के बाद अल्लाह के नबी 2 रकात अदा करते थे। फिर कहा गया व क़ब्ल अल-फज्र रकअतैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है और इसके बारे में ये खुशखबरी बताई गई कि जो शख्स इन सुन्नतों पर अपनी जिंदगी को ले आएगा, अल्लाह के तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में उसके लिए एक घर को आबाद करेगा, उसके लिए घर बनाएगा। जन्नत के अंदर घर की खुशखबरी दी गई है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा से हजरत अंबसा ने इस बात को सुना, कहते हैं मैंने सारी जिंदगी कभी सुन्नत मुअक्कदा को तर्क नहीं किया। फिर उनसे इस बात को सुना है उमर इब्न औस ने, वो ये कहते हैं कि जब से मैंने ये सुना है तब से लेकर अपनी मौत तक मैंने इस सुन्नत को कभी नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं नुअमान इब्न सालिम ने कि मैंने अपने उस्ताद से जो बात सुनी थी तब से लेकर आज तक मैंने कभी सुन्नत मुअक्कदा को नहीं छोड़ा। ये खैरुल कुरून का जमाना था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती, चाहे वो फराइज का मामला हो, चाहे सुन्नतों का मामला हो, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी की बात आ जाती तो सारी जिंदगी अमल करने का एक शौक और जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाता। सुन्नतों के साथ उनका ये मामला था। लेकिन देखने का मौका ये मिल रहा है कि रमजान के अंदर तो हमने 5 वक्त की नमाजें मुकम्मल बाजमात अदा कर ली, लेकिन रमजान के बाद से हमने फराइज के अंदर कोताही को शुरू कर दिया। फराइज हमसे बराबर अदा नहीं होते। मोहतरम सामईन इकराम, याद रखिए इस्तिकामत के साथ इस दीन पर हमें जम जाना है। अल्लाह पर ईमान लाने की कैफियत ये होनी चाहिए कि हम इल्म भी हासिल करें, अमल के जरिए से हम ये सबूत दें कि हम ईमान वाले हैं। वो अहले इस्तिकामत के बारे में आता है जिन्हें सईद इब्न मुसय्यब के नाम से जाना जाता है, सय्यद ताबिईन, जिसे कहा गया 40 साल तक उन्होंने तकबीर तहरीमा को नहीं छोड़ा। जिस तरह इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, इकामत फौरन हो जाए, जब सफे बन जाए, 40 साल तक उन्होंने तकबीर तहरीमा को नहीं छोड़ा। उनके बारे में आता है कि उन्होंने सामने वाले की गर्दन को नहीं देखा। अहले इल्म इसके बारे में लिखते हैं हमेशा सफे अव्वल में नमाज पढ़ते थे, सफे अव्वल के वो नमाजी बने रहे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है उन लोगों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बराअत का ऐलान किया है, और वो लोग जो 40 दिन तक बाजमात नमाज अदा कर ले तकबीर तहरीमा के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये कहा है, उन दोनों के लिए बराअत का ऐलान कर दिया गया, बराअतुम मिनन निफाक। जो शख्स
40 दिन तक तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ लेता है, वो निफाक से बरी हो जाता है, निफाक से वो बरी हो जाता है, वो मुनाफिक नहीं हो सकता, वो मुनाफिक नहीं हो सकता। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गारंटी दे दी है कि अगर तुम अपने आप को जांचना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 40 दिन तक तकबीर तहरीमा के साथ बाजमात नमाज अदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको निफाक से दूर कर देते हैं। मुनाफिकाना सिफत, मुनाफिकाना रवैये और मुनाफिकाना बोलचाल अल्लाह उससे खत्म कर देते हैं। और दूसरा ऐलान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बराअतुन मिनन नार, जहन्नम की आग से उसको बरी कर दिया जाता है। हाँ, कितनी प्यारी खुशखबरी हमें ये बताई गई है। तकबीर तहरीमा के साथ 40 दिन तक जो बाजमात नमाज अदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 2 चीजों से उसको बरी कर देते हैं। एक निफाक से वो बरी हो जाता है और जहन्नम की आग से वो बरी हो जाता है। मोहतरम सामाईन इकराम, हम तमाम को चाहिए कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। हमारी तौबा भी बड़ी कमजोर तौबा है। आज हमने तौबा की, शाम में हमारी तौबा छूट जाती है, उसको हम खत्म कर देते हैं। जैसा हमने दुआ की कि है अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा दे, मुझे गानों से, मौसीकी से, बुरी बातों से, झूठ चुगली गीबतों से मुझे बचा दे। हमने ज़ोहर में अल्लाह से दुआ मांगी और दुआ भी हमारी इतनी कमजोर होती है, तौबा वो शाम में टूट जाती है। हमने रमजान के अंदर कितनी दुआएं की, ऐ अल्लाह हमें हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। जैसे ही रमजान खत्म हुआ फिर से हमारी तौबा खत्म हो गई। हमारी तौबा ऐसी तौबा बन गई, बस उस पर तौबा करने की जरूरत है। हमारा इस्तिग़फ़ार ऐसा इस्तिग़फ़ार हो गया, उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत बन गई। मोहतरम सामाईन इकराम, याद रखें, हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुशहाली चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो हमें ईमान पर इस्तिकामत के साथ जम जाना चाहिए, अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए। वही अल्लाह ने जो तरीका इबादतों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतों का तरीका हमें सिखाया है कि नमाजें तुम्हें किस तरह अदा करनी, रोजे तुम्हें किस तरह रखना चाहिए, हज तुम्हें किस तरह करना चाहिए, ज़कात किस तरह तुम्हें मालदारों को अदा करनी चाहिए, सदका खैरात करने का तरीका बताया, अच्छे अखलाक का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की तरफ हमें रहनुमाई कर दी है। तो हमें सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखते हुए हर अमल के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि क्या मेरा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है कि नहीं है। अगर वो अमल है तो मेरा तरीका जो मैं कर रहा हूँ वो अमल काबिल कबूल है। अगर मेरा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा नहीं है तो वो अमल मरदूद है, वो अमल मरदूद है। अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को आपके मुंह पे मार देगा। वो अमल काबिल कबूल नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उस तरीके के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजे रखते थे, रमजान के बाद भी रोजे रखते थे, पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे, अय्याम 20 के रोजे रखते थे, 13, 14, 15 का रोजा हर महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है यौम आशुरा के रोजे रखने का, यौम अरफा के रोजे रखने का। रमजान का महीना खत्म हुआ तो हम समझते हैं रोजे भी खत्म हो गए। रमजान का महीना खत्म हुआ तो हम ये समझते हैं कि रमजान तो खत्म हो गया ना, रोजे रखे तो नमाज जमात के साथ पढ़ना है, फौरन जाके मस्जिद में बैठ जाना है। अब रमजान खत्म हो गया तो चलो जैसा चाहे कर सकते, ऐसा नहीं है। सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अमल हमें बताया है, सारी जिंदगी मरते दम तक करना है, मरते दम तक करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि उन अहादीस को सहाबा सुनते तो सारी जिंदगी अमल करते। फराइज का छोड़ना, फर्ज नमाजों को छोड़ना तो दूर की बात है, जब हदीस आ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो फर्ज नमाजों के बाद 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर को तैयार कर देते हैं। जैसे फजर से पहले 2 रकात हम सुन्नत अदा करते हैं, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात अदा करते हैं और ईशा की नमाज के बाद 2 रकात अदा करते हैं। जब सहाबा ने उन अल्फाज को सुना तो उनके बारे में यह कहा गया कि वो सारी जिंदगी अपनी जिंदगी को सुन्नतों पर इस्तिकामत के साथ अमल करने की कोशिश करते रहे हैं। तो हमें भी चाहिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को हम पढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह को बनाया, अल्लाह के घर को बनाया, तो हजरत इब्राहिम ने क्या कहा? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह तू मेरे इस अमल को कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह तू सुनने वाला है, तू बड़ा जानने वाला है। ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने किया है, ऐ अल्लाह उसको कबूल फरमा। जब इमारत बन गई उसके बाद रोने लगे तो देखने वालों ने ये कहा है खलील रहमान कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुमने रहमान के इस घर को तुमने बना दिया है। वतखाफु अल्लाह यक़बल अमल, कि तुम अपने अमल के एतबार से खौफ की वजह से रो रहे हो कि अमल मेरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अमल के करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं अल्लाह के सामने कि ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने किया है अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है, जो कुछ मैंने किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। आज हमें अपनी जिंदगियों के अंदर गौर और फिक्र करना चाहिए कि रमजान के अंदर हम ये समझे कि शब कदर हमने पूरी रातों में इबादत कर ली और क़ियाम लैल हमने कर लिया, रमजान की हमने इबादतें कर ली। नहीं, हमें अपनी फिक्र करना चाहिए कि ऐ अल्लाह जो कुछ मैंने रमजान में इबादतें की हैं अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू उन इबादतों को मेरी कबूल फरमा, अल्लाह ज़ाया ना फरमा। जो कुछ लग़्ज़िशें हुई हैं, कोताहियां हुई है, ऐ अल्लाह तमाम को तू माफ फरमा दे। मोहतरम सामाईन इकराम, हमको अपनी इबादतों के अंदर मुहत्ताज होना है, गौर और फिक्र के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को अपनी जिंदगी में उसे लाना है और इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर जम जाना है। हर इबादत को मुकम्मल तरीके से खुशदिली के साथ और रब को राजी करने के लिए करना है। जिस तरह रमजान के अंदर हम बड़ी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मस्जिद में पहले आ जाते हैं, फौरन कुरान को खोलकर तिलावत शुरू कर देते हैं और हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं और फराइज के अंदर हम तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ने के हम आदी बन गए थे। हमें सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम जो कुछ हमने इबादतें की है इस्तिकामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें जमा दे। ऐसा नहीं कि रमजान आ गया तो हम खूब इबादतें करने लगे, रमजान खत्म हो गया तो इबादतें भी हमसे छूटती रही। ये ईमान वाले की अलामत नहीं है। ईमान वाले की अलामत तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम अपने आप को पहचानना चाहते हो कि तुम मुनाफिक हो कि नहीं हो, तो अपने आप को इन चीजों पर गौर कर देख लो कि तुम 40 दिन तक तकबीर तहरीमा तुम बाजमात नमाज अदा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला 2 चीजें तुम्हारे अंदर पैदा कर देगा। एक ईमानी कुव्वत और हरारत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर, और मुनाफिकाना कैफियत को तुमसे अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा और जहन्नम की आग से अल्लाह तबारक व तआला आपको दूर कर देगा, बरात दे देगा आपको। हाँ, 40 दिन तक, जैसे कि दिन में 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा,
इसी तरीके के मुताबिक 40 दिन तक अगर हम ये अमल कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के अंदर वो कैफियत को पैदा कर देगा। 40 दिन ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें तकबीर तहरीमा का पाबंद बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्तिकामत के साथ दीन के ऊपर जमा दे। हाँ, कोई जैसे कि आज कारोबार का मसला होता है या पैसों की लालच का मसला होता है, आदमी अपने ईमान को छोड़ देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देता है। कोई लालच देता है कि तुमको हम फला चीज देंगे, तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो। कई लोग नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। कई लोग कारोबार को ज्यादा करने की लालच के अंदर नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। कई लोग दुनिया कमाने के वास्ते दीन से पीछे हट जाते हैं। पेट का मसला बहुत बुरा है, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं होगा। झूठ नहीं बोलेंगे कारोबार नहीं होगा। हमको झूठ बोलना पड़ता पेट के वास्ते नहीं। सारी जिंदगी हम तमाम को गौर फिक्र करने की जरूरत है। हम अपनी जबान से झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे रमजान तो आया था, रमजान के अंदर हम बचते रहे हैं, झूठ नहीं बोले। रमजान आया था, हमने अपने आंखों से उन गाने बजानों को नहीं देखा, नहीं सुना, हम बचते रहे हैं। सारी जिंदगी इससे बचते रहेंगे। हमने रमजान के अंदर मुकम्मल अपने आप को अल्लाह की इबादतों में लगा दिया था। इसी तरह सारी जिंदगी हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। और याद रखिए, अल्लाह पर ईमान लाना तौहीद रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात, अल्लाह ही की इबादत करना है। वही तन्हा और खालिक और मालिक है जिसने इस आसमान और जमीन और मखलूकात को पैदा किया। उसी के हाथ में बादशाहत है। वही सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है। उसके अलावा कोई नहीं सुन सकता। बहुत सारे लोग पत्थरों के सामने जाकर कहते हैं कि हजरत पीर साहब हमारी दुआ सुन लीजिए, हमारी बच्ची की शादी करा दीजिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, आप जाकर देखिए दरगाहों पर एक झाड़ पे बायोडेटा लपटा हुआ है, झाड़ पे बंधा हुआ है, बच्ची की फोटो उतरी हुई है। पूछे भाई यहाँ पर कई को लटकाए, बोले कि हजरत के पास लटकाएंगे तो हमारी बच्ची की शादी जल्दी हो जाएगी। आप जाकर देख ले, हैदराबाद के अंदर एक दरगाह ऐसी है जहां पर पूरे ताले लगे हुए हैं, पूरे खबरों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। पूछे तो मालूम पड़ा कि हजरत के पास ताला लाके डाले तो जिंदगी का ताला खुल जाता है। उधर ताला लगा दिए, इधर ताला खुल जाता। उन्होंने ताला खोलने वाले नहीं है, जिंदगी का ताला खोलने वाला अल्लाह है। हमारी तमाम परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है। हाँ, वो भी हमारे ही जैसे थे, आज कब्रों में वो आराम कर रहे हैं। हाँ, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर यही बताकर गए हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से सामने हाथ मत फैलाओ, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा मत करो। हम तमाम को चाहिए कि हम अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल भरोसा करने वाले बने। जब भी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब कोई गमनाक हालात आते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते कि चलो नमाज की तरफ, इज़ा हज़बहु अम्रुन फसल्ला। जैसे ही गमनाक घड़ियां आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज पढ़ते, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगते कि ऐ अल्लाह इन हालात को बेहतर बना दे। जो आयत खुतबे के अंदर तिलावत की गई है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बिलाशुबा जो लोग ये कहें कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, उसके ऊपर जम गए सारी जिंदगी, ईमान अल्लाह पर लाए हैं और अल्लाह ही की इबादत करते हैं। अल्लाह ने जो कुछ कुरान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, उसके ऊपर सारी जिंदगी अमल करते रहे, इस्तिकामत के साथ जम गए, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उनके पास आते हैं। हाँ, जो अल्लाह को रब मान ले, रसूल को आखिर नबी रसूल तस्लीम कर ले
اور نبی نے جو کچھ بتا دیا ہے ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا حالات ہونے والے ہیں، ولا تحزنوا، اور جو کچھ پیچھے ہوا ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں شرط ہے، ایمان والا بننے کی ضرورت ہے۔ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی نصیحت فرما دیجئے کہ اس نصیحت کے بعد مجھے کوئی اور سوال کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ، استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ساری زندگی استقامت کے ساتھ ایمان پر جما دے، دین پر جما دے، اللہ کی بندگی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جما دے، اور فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ حالات بن رہے ہیں اور جو کچھ پلاننگ دشمن کر رہا ہے، باطل طاقتیں جو کچھ محنتیں کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی انہی کی طرف لوٹا دے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں قرض سے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں اللہ تبارک و تعالی فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور خاص کر ساری دنیا میں جہاں کہیں امت مسلمہ، خاص کر فلسطین، غزہ کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، ان کی ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ استقامت کے ساتھ ایمان پر جما دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب الحليم۔